Hello everyone. Question at two isolated metallic solid sphere of radii r and 2r are charged such that both of these have the same charge density. The spheres are located far away from each other and connected by a thin conducting wire. Find the new charge density on the bigger sphere. ਆਪਾਂ new charge density ਪਤਾ ਕਰਨੀ on the bigger sphere, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ, ਜਿਹਦੀ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ Q1, ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਿਗਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਫੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2r ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ Q2, ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫॉर ਫਰਸਟ ਸਫੀਅਰ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਸਫੀਅਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਫੀਅਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਫੀਅਰ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਗਮਾ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ Q1 4 ਪਾਈ ਕੈਪੀਟਲ R ਸਕੁਅਰ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ Q1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਿਗਮਾ 4 ਪਾਈ ਕੈਪੀਟਲ R ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ Q1। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਫੀਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੇਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਿਗਮਾ 4 ਪਾਈ, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2r ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ Q2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਿਗਮਾ 6 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ। Q2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ 6 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ Q1। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜ ਨੂੰ Q ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ Q1 ਪਲੱਸ Q2। Q1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 ਸਿਗਮਾ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਸਿਗਮਾ 16 ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਗਮਾ 16 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਿਗਮਾ 20 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ 20 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਫੀਅਰ ਨੇ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪੀਟਲ R, ਦੂਸਰੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 2r। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਫੀਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ Q1 ਡੈਸ਼, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ Q2 ਡੈਸ਼, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਾਈਨਲੀ ਸੇਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸੇਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ Q1 ਡੈਸ਼, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ Q2 ਡੈਸ਼, ਬਟ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ, ਬਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਰਿਮੇਨਸ ਦਾ ਸੇਮ। ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਰਿਮੇਨਸ ਦਾ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ Q1 ਡੈਸ਼ plus Q2 dash is equals to Q1 plus Q2। Q1 plus Q2 ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਮਾ 20 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਕੀ ਰਹੂਗੀ ਇਕੁਅਲ, V1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ V2। V1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ Q1 ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਕੈਪੀਟਲ R, V2 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ Q2 ਡੈਸ਼ ਬਾਈ 2r, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q1 ਡੈਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ Q2 ਡੈਸ਼ ਬਾਈ 2 ਆ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ Q1 ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਏਸ਼ਨ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ Q1 ਡੈਸ਼ ਇਨਟੂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ A। ਇਕੁਏਸ਼ਨ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ Q2 ਡੈਸ਼ ਬਾਈ 2 plus Q2 dash is equals to sigma 20 pi r square। अगर इनू सॉल्व करन तो कितना आ गया 3 Q2 dash by 2 कितना आ गया अपने को सिग्मा 20 pi r square, ठीक है। तो हम देखो आप इनू रीअरेंज करते हैं तो आप इनू कितना लिख लेंगे Q2 dash is equals to Q2 dash is equals to 4 pi 2r square एक साइड से लिख लेंगे। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਗਮਾ 3 5/2। ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆ ਟਰਮ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਚਾਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਗਈ ਬਿਗਰ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਨਿਊ ਚਾਰ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਹੈ 5/6 ਟਾਈਮਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। In this question, a circular ring of radius r with uniform positive charge density lambda per unit length is located in yz plane, okay, with its center at O, okay। यहाँ पे क्या है इस सेंटर हमें दे रखा है कि
ये रिंग का सेंटर कहाँ पे है, ओ पे है, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड पॉजिटिव चार्ज q इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट p की वैल्यू दे रखा है r√3 0,0, मतलब x एक्सेस पे r√3 से पार्टिकल को छोड़ा जा रहा है ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सेस डायरेक्शन टूवर्ड o, सेंटर की तरफ छोड़ा जा रहा है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द स्पीड v सच दैट द पार्टिकल डज नॉट रिटर्न टू p। ओके, मतलब ये कि देखो यहाँ हम कहीं p मान लेते हैं। ओके, इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है ये है r√3 और ये पार्टिकल यहाँ p से छोड़ा जा रहा है, ठीक है। इस पे चार्ज क्या है, q है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं और सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं और सिस्टम का जो एनर्जी है कंजर्व रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा। तो पोटेंशियल एट पी क्या होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो q की वैल्यू क्या होगी, हम लिख देते हैं q डिवाइडेड बाई r² प्लस x², ठीक है। और इस x की वैल्यू का क्या है, यहाँ पे r√3 है, तो यहाँ से ये चीज़ हमको फाइंड आउट करना है, ये जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा, ये क्या है, ये हमारा जो है कि r है, रेडियस सर्कल का क्या है, r है, तो r² प्लस ये दिया है x² मैं मान लेता हूँ और x की वैल्यू क्या है r√3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से v एट p जो होगा, पोटेंशियल एट p, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। यहाँ पे क्या हो जाएगा, q की वैल्यू जो होगी ये होता है, देखो लैम्डा जो है चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू q, या कैपिटल Q ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 पाई r हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी लेंथ है, ठीक है, सर्कल की पूरी लेंथ। तो Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा 2 पाई r लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से इसका यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई r लैम्डा डिवाइडेड बाई r² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा r² इंटू 3। ओके, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 पाई r लैम्डा डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 4r² और अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई r लैम्डा डिवाइडेड बाई 2r। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आगे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे r से r और 2 से 2 कैंसिल होगा और पाई से पाई कैंसिल होगा, तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। और पोटेंशियल सेंटर पे निकाल लेते हैं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, V एट O इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या है, ये है 2 पाई R लैम्डा, और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, पोटेंशियल कितना आ गया, लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करते हैं कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस को मैं भी मान लेता हूँ, तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी एट ओ माइनस बी पी। तो ये हो जाएगा भी एट ओ क्या है, लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट जो आ गया यहाँ का
इस इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वही कन्वर्ट हो जाएगी सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि वहाँ पे जाके पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है। तो ये लिख सकते हैं हाफ हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्यू वी होता है, ओके। तो यहाँ से क्यू और ये पोटेंशियल डिफरेंस वी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q वी, ओके, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q वी बाई एम। और इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो v जो होगा, वेलोसिटी जो होगी वो होगी 2q वी बाई एम, और v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो स्मॉल v जो होगा ये मिल जाएगा हमें 2q इंटू ये v हमने फाइंड आउट किया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ पॉइंट p एंड o। तो यहाँ से लिख देंगे लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम, ओके। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 से 4 कैंसिल, तो ये होगा q लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एम। इतना जो होगा वो स्पीड होगा, मिनिमम स्पीड, जिससे हम इस पार्टिकल को यहाँ से अगर छोड़ा जाए v इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन एम, तो पार्टिकल यहाँ पे चला जाएगा और वहाँ से फिर वापस नहीं आएगा, ओके। तो मिनिमम वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, इतना होगी, ओके। इस क्वेश्चन में हमको ये दिया है कि एक चार्ज क्यू कूलम्ब है, वो एक स्पेरिकल वॉल्यूम के रेडियस आर में पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो हमें एनर्जी एक्सप्रेशन फाइंड करना होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें सेकंड है, करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी में अगर एक प्लैनेट को कंसिडर किया तो उसमें ग्रेविटेशनल पुल भी होता है। सो अगर अर्थ का मास हमें मास पर रेडियस 2.5 इंटू 10 पावर 31 kg मीटर लिया तो हमें एनर्जी फाइंड करना होगा अर्थ का। सो पहले एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी फाइंड करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू आर वी इंटू डी आर, यही होता है वर्क डन, वी इंटू डी क्यू। सो क्यू इज अ चार्ज डेंसिटी। अगर ये एक स्पेरिकल वॉल्यूम में है तो अगर एक स्ट्रिप लिया तो बीच में एक शेल, सो इसका थिकनेस dx है तो क्या होगा, रो इज इक्वल टू क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो रो होगा 3q बाई 4 पाई आर क्यूब। सो एक स्मॉल स्ट्रिप लिया तो q का वैल्यू क्या होता है 4/3 पाई एक्स क्यूब रो विच इज इक्वल टू q बाई आर क्यूब इंटू एक्स क्यूब। सो अगर ये सब्स्टिट्यूट किया तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू आर इंटू v क्या है, v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई के क्यू बाई आर, मतलब के क्यू बाई एक्स इंटू क्यू इंटू एक्स क्यूब बाई आर क्यूब। इसका वैल्यू होगा क्यू बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। सो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से आर तक क्यू बाई 4/3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी क्यू मतलब 3q बाई आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो इधर से अगर कैलकुलेट किया तो वर्क डन इज इक्वल टू 3q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर पावर 6, ये सब कॉमन लिया तो इंटीग्रल 0 से आर एक्स पावर 4 डी एक्स विच इज इक्वल टू 3q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर पावर 6 इंटू एक्स पावर 5/5 एक्स पावर 4 का, सो आर पावर 5/5, ये होगा इसका वैल्यू। सो इधर से वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू 3/5 इंटू क्यू स्क्वायर बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये होगा एनर्जी का एक्सप्रेशन। सो दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ फाइंड करना होगा। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो नॉर्मली इन ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू 3/5 इंटू G m²/r। सो अगर कैपिटल G को यूज़ किया तो 3/5 इंटू G इंटू r² इंटू m/r इज इक्वल टू 3G स्मॉल m कैपिटल M r/5, ये होगा क्योंकि स्मॉल g इज इक्वल टू G कैपिटल M/r²। हमको पता है G कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू r² इधर से फ्रॉम दिस। सो इधर से फाइनली वैल्यू होगा mr क्या है, m इंटू r, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू 3/5 इंटू ग्रेविटी 9.8 इंटू mr कितना है, mr हमको दिया है 2.5 इंटू 10^31 kg मीटर। सो अगर इसको कैलकुलेट किया तो वर्क डन होगा 1.7 इंटू 10^-32 जॉल, ये होगा वर्क डन। थैंक यू।